तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदी तेरी, तेरे कब्जे में है दिल मेरा जा मेरी। तू है मालिक मेरा, मैं हूँ बंदी तेरी, तेरे कब्जे में है दिल मेरा जा मेरी। तू है सबसे बड़ा ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। कुर्सी बनी, कुर्सी बनी, अर्श-ए आज़म बना, कुर्सी बनी, अर्श-ए आज़म बना, कुन से तेरे सारा आलम बना। कुर्सी बनी, अर्श-ए आज़म बना, कुन से तेरे सारा आलम बना। हर ज़ख्म का तू मरहम बना, हर ज़ख्म का तू मरहम बना। बेमिसल है तू बेशुमार, ए खुदा, 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 ए खुदा। चाँद सूरज चमकते हैं दम से तेरे, और सितारे दमकते हैं दम से तेरे, और सितारे दमकते हैं दम से तेरे। मांद पड़ता नहीं इस चमक में कभी, हाँ करिश्मा है ये कुदरत का तेरी। मांद पड़ता नहीं इस चमक में कभी, हाँ करिश्मा है ये कुदरत का तेरी। तू है सबसे बड़ा ए खुदा, 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 ए खुदा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear beautiful mothers and sisters. Welcome to another beautiful evening with All India Muslim Personal Law Board's Women's Wing. आज का सेशन स्पेशली आप सब ब्यूटीफुल मदर्स के लिए है. So inshallah we will learn a lot about our children's issues, उनके attachment styles, अच्छे parenting कैसे करें और बहुत कुछ इंशाल्लाह आज के सेशन में हम सीखेंगे. हमारे बच्चे हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है, राइट? हम सब ऐसे समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, पर अल्लाह सुब्हान ताला सूरह नंबर 64 वर्स 15 में बोलता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम. अल्लाह सेज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, एक आजमाइश है. एंड देन ही सेज दैट अल्लाह अलोन हैज ग्रेट रिवॉर्ड्स, कि सिर्फ अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला दे सकता है. इसका मतलब है कि बच्चों की परवरिश करना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ टेस्ट, राइट? एंड टेस्ट्स आर नेवर इजी. लेकिन अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला के जो ग्रेट रिवॉर्ड्स है वो आपके हो गए. So, हमारे फर्स्ट स्पीकर जो है हमको प्यूबर्टी के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह. टीनेजर्स के सोशल मीडिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके डाइट एंड लाइफस्टाइल इश्यूज और बहुत सारे जो करंट रिलेटेबल इश्यूज है इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वो बात करेंगे. So without any further delay, let me introduce you to our special guest for today, Dr. Sabiha Shehnaz. Dr. Shehnaz is an MBBS.
She's a member of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. She's also a fellow of the Royal Australian College of General Practitioners. Alhamdulillah. हम डॉक्टर शहनाज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टेक ओवर करें और हमारे मदर्स को ये सारे इश्यूज पर एड्रेस करें. Yeah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me start again. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdatan uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ameen. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. So today I'm going to be talking, touching base on few aspects, a bit of puberty, a bit of cyberbullying, how to look after our teenagers with respect to diet, and a bit of a few issues which very commonly we come across as teenagers. Now, when we were growing up, have you ever wanted to know the truth about growing up as a young Muslimah, but were too shy to ask an adult? Yes, we have all gone through this phase. ये सब हम सब की कहानी है. So how to prepare for this new phase? हम इसकी तैयारी कैसे करें और अपने बच्चों को support कैसे करें? So एक डॉक्टर के हैसियत से मैं explain करूँगी. Also within our boundaries of our Islamic deen, especially when we live in Western society, और इवन आजकल का जो माहौल है which has become very westernized, ये बहुत जरूरी है. So we should know a bit about puberty, the religious aspects that come along with it. So I would encourage all us parents कि we understand this so we can understand our children better, especially the changes that they're going through, physically, emotionally, mentally, socially, you know. So now, if you look at it, you know, although you want to hold tight to your little princess doll and wonder, where did my angel go? You know, as my princess has started her journey into womanhood, my baby, you'll wonder, my baby can hardly make her bed. वो अपना बिस्तर भी सही तरीके से नहीं बना सकती है. How will she handle adolescence? How will she handle womanhood? So, Allah subhanahu wa ta'ala gives us these changes के लिए हमें सबर भी दे देते हैं, हमें इसके लिए prepare भी कर देते हैं, inshallah, and we'll try and support you in this journey, beautiful journey, inshallah. So why are we having this discussion today? You know, because nowadays children are maturing earlier, especially nowadays this world of social media, you know, YouTube, texting, they hear all kinds of nonsense. And before they hear it from unfamiliar territory, it's better that we become their best friends and get close to them and explain to them. But for that, we have to learn ourselves. हमें इल्म की बहुत ज़रूरत है ताकि हम दूसरों बच्चों के साथ हम समझ सकें. So that's why we are having this discussion today, inshallah. And although puberty may be a roller coaster of emotions to the teenagers, they should remember that we have to make them understand that they are capable of controlling themselves and their emotions if they set their mind to do so. तो हमारे इनपुट, हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि वो इस उलझन से जो गुजर रहे हैं उस पे वो काबू कर सकें और इस्लाम के दायरे में, because Islam sets rules and boundaries. Why? So we can have healthy relationship which results in a happier family and happier societies in general. So that's why that is our role here, inshallah. So let's move on. Okay. So just go to the next one. Some technical issues. Okay. So of course we are going to mainly focus on teenage girls, but of course there will be mothers of teenage boys as well, and it will be similar changes. So what is puberty? According to Islam, it's a point where a girl has had a first period and by which the girl becomes accountable to Allah for her actions. According to medical science, it's a process of physical changes by which a child's body matures and she's capable of having children, basically. So
a Muslim girl, they need guidance and knowledge at this time. But ये knowledge should stay within the confines of haya, of modesty. Most Western public schools में आप देखेंगे कि parents को choice दिया जाता है. They are shown that they have a choice of showing the girls a video about puberty, but sometimes it may not be age appropriate. So many Muslim parents वो opt out हो जाते हैं for good reason, because they are very graphic and they can discuss a lot of things, including how you get pregnant. So even if some Muslim parents discuss puberty, they don't explain the Islamic responsibilities that arrive at this stage. तो इसमें काफी responsibilities हो जाते हैं इस्लाम के दायरे में. तो हम parents पहले understand करें ये सारे changes अल्लाह सुब्हानहू तआला से आए हैं. It's a gift, and with that comes a great responsibility. Now they are adults in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So, but when they grow up, they start having this attitude problem, me, I, and they start giving full credit to themselves. You know, this comes as a part of it. So what are the effect it has? It has emotional effects, anger, frustration, being very sensitive or awkward, irritable, lonely, you know, bullying, usme aa jata hai, self-consciousness, nobody understands me. And then physical changes I'll go through, some body changes, and of course social changes. Jaise friends unko exclude kar lete hain, they feel lonely, lack of friends. So what are the signs of puberty? So first of all, they start getting breast buds, and then jab wo aane lagta hai, then your periods usually 1-2-3 saal ke baad your periods start coming after the breasts start developing, and then they started developing some pubic hair. Initially soft, and you know, then slowly they become coarse and thick. So period usually 1-2 saal ke baad aate hain, hair development ke baad. And of course commonly there's vaginal discharge, which we have to discuss with them, otherwise they get very scared and frightened. What's going on with my body? So best thing is ask your mom. And kab aayega, when will the puberty start? Usually it's around the time close to when your mother has got it. So average age is usually 11 to 12 years old. So adolescence is basically a stage of development where your body goes through these changes at a very fast rate because of hormones. Your hormones are produced in the body by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. तो हम कैसे explain करेंगे? We tell that every baby girl is born with 2 ovaries होते हैं, एक uterus होता है, uterus एक आप हाथ का मुट्ठी दिखाएं, and it's like the muscle the size of a fist where a baby can grow. Allah subhanahu wa ta'ala produces hormones called estrogen and progesterone in your body, and ये changes क्या होते हैं? जैसे hair grow होता है, and फिर हम उनको समझाएं कि फिर हम shave करते हैं every 40 days, फिर sweat glands बन जाते हैं, so we take regular showers, नहीं तो फिर body odor smell हो जाते हैं. और ये age में बहुत rapidly grow होते हैं सारे glands, they start getting very active. Chest भी grow हो जाता है, क्यों? Because उसमें you can produce milk when you get married and have a child. So the ovaries will release an egg every month. We can explain to them. Then the uterus prepares a thin layer of tissue to receive the egg. And upon puberty, the uterus will shed this thin layer of tissue every month. And this is your monthly period. So हम उनको धीरे-धीरे समझा सकते हैं. Step by step, you know, not all at once, but little by little. So we explain why. Oh, why am I getting it? So we explain little girls are starting to become little women. This process will take several years, but you have to learn to carry yourself like a Muslim woman. Over time, your body matures so that one day it will be ready to be a mother when you get married. So a healthy, able body is a trust from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah made it, so He knows best how to take care of it. And He tells us how through the Quran and Sunnah, by doing halal and staying away from haram. So Prophet Muhammad said, this is something that Allah has decreed for the daughters of Adam alayhi salam. Unlike other religion, Islam does not view your period like a curse. It's a blessing. So our faith does not teach any connection between menstruation and Hawa al-Islam or the first sin. Islam does not preach that women are the source of evil. In fact, we believe that Adam and Hawa al-Islam made the choice to disobey Allah together. It wasn't one or the other.
So when will I get my puberty? So usually you can start getting ready for it around the age of 9 when these changes start developing. And even if you don't menstruate by the age of 15, you would have reached the age of puberty. That's a girl's first period usually is between 9 and 16, but on average it's 12 and a half years. But don't think that if your best friend has got it, you will get it on the same day or the same year. No, just relax. As long as you're eating healthy, as long as you're getting enough sleep, you have nothing to worry about it. It's a special time chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and it will happen when your body gets ready for it. So everybody's body is different. So as I said, these were the signs, the developing breast, growing pubic hair, getting discharge. Now discharge is a big sign. So it can be white or yellow, so it's good to encourage them to start using panty liners to protect the underwear. This is also was done in the women of Medina. They used to wear a piece of cotton wool, karsuf. So your period can start 6 to 18 months after the start of discharge. Usually they start light, and then you'll lose about 2 to 5, tablespoon of blood over a period of 2 to 8 days. Initially it's slow, and then it becomes into a normal pattern. So what should I do? How do I keep them ready? To keep them, we can make a little kit, a little attractive little kit. So make them begin to look forward to it and not to hate it or get scared of it or panic. That's the worst thing to happen. So keep lots of pads, with them. Keep a change of clothes in the locker at school or in the bag. Give them some Crocin or Panadol, painkillers or Nurofen, a hot water bottle, and lots of chocolate and lots of love. And then encourage them to use a pad to wear with your underwear, and change the pad as often as you need, enough to stay dry and comfortable. So keep some underwear exclusively for use during these days. And it's best to encourage to use some darker color dresses, so that even if it stains, they don't feel too embarrassed about it. Okay, so that was a bit about puberty. Now I'm just going to touch base a bit on cyberbullying. So what is cyberbullying? You get bullied online. Basically, just as you get bullied in person, you can get bullied. And this is a bit silent, but it can be very hurtful because it hurts you as much as a physical or verbal bullying. Why? Because it's public. Lots of people can see it happening. It spreads quickly, especially nowadays like wildfire. It can be hard to escape. And the bully can be anonymous. So you don't even know who's doing it to you. And removing it can be a difficult process. So, and because children are so vulnerable, emotionally, anything said to them, you're fat, you're ugly, you're a loser, you have no friends, can affect them, and they can go into deep depression. And it's very important to keep an eye on them. So how do we stop it? Well, tell them it's not okay. You shouldn't put up with it. You can get help. Seek help from your a trusted adult, so parent, teacher, elder sibling. We also have lots of kids helpline. So get help from the police if needed, and make a report to eSafety to get that image removed. Block the person and report the person. Keep some evidence, take some screenshots, and switch off for a while. So, if you don't have to be doing it, you can come offline and not be on that media. And it's not encouraged to be on social media anyway, but in case a child has been, especially an older teenager, they are already on the social media, then we try to explain to them about cyberbullying. Now coming to diet for teenagers. Now, usually teenagers, they usually go for seafood. They see food and they eat it. And that's not what we want. जब भी हम बोर होते हैं तो वो हम खाते हैं उनका यही होता है whenever we are bored they eat due to boredom. So usually it's a want and not a need. They want to eat, not that they have to eat. So आजकल के teenagers तो हमेशा बोर होते हैं तो फिर वो हमेशा खाते हैं. अब क्या खाते हैं? So we shouldn't encourage seafood. We should encourage so if they do just see what they like and they want to eat, they become couch potatoes. बैठे बैठे खाते रहते हैं, chips वगैरह, that should be avoided.
Now, if you compare today's generation with the previous generation, they used to fast often, whereas currently the teenagers, they feast often. So before they used to have simple food. Now it's fast food. Before it was khajur and water. Now it's chocolate and coke. Before, वक्त पे खाते थे, अभी तो बेवक्त खाते हैं. पहले पेट भरने से पहले अपना हाथ रोकते थे, अब तो जी भर के खाते हैं. पहले एक्टिव रहते थे, हर काम खुद से करते थे. अब तो अक्सर दूसरों से कराते हैं काम और बैठे बैठे रहते हैं. Just sit around and get things done by others. So eating moderately, not stuffing yourself. कम खाने के फायदे बहुत हैं. Lots of benefits of eating healthy and moderately. Eat less but eat moderately. Now, दीनी के एतबार से देखें तो काफी हेल्थ बेनिफिट्स है फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो दिल साफ रहता है, नफ्स काबू में रहता है, हम नफ्स को मार सकते हैं. परहेज करना, हम वी शुड अडॉप्ट दिस वेरी मच. क्यों? बिकॉज दिल नरम होता है, दिल नरम या सॉफ्ट बन जाता है, दुनिया और आखिरत के का एहसास होता है. हम अपनों से जो गरीब हैं उनका एहसास करते हैं. लोगों को समझने और समझाने की हमें सलाहियत होती है. नेकी करने में मजा आता है. We enjoy doing good deeds. उनका माइंड सुस्त नहीं होता है, तो हम परहेजगार बन जाते हैं. We become God conscious as well. दुनिया और आखिरत की एहसास होती है. जो ज्यादा खाता है उसका बॉडी तो सुस्त होता है, बट उसका माइंड भी सुस्त हो जाता है, और नेक काम करने में उसको जरा भी मजा नहीं आता है. जैसे लुक एट रमजान में रात को तरावी 20 रकात आसानी से हम पढ़ लेते हैं. इफ यू ईट लेस, मॉडरेटली एंड बैलेंस्ड, you can easily do your tarawih of 20 rakat without falling asleep or without any problem if you have a balanced diet. So always remember, eat less but eat moderately. Okay. Now, of course, these are a few general tips. Make sure the children drink enough water, they get enough sleep every day, at least 8 hours we recommend, and so they don't feel dull, depressed the next day. And make sure that they are not having unko phone na de, especially raat ko on their own, where they go on social media or they chat with others. They should have good sleeps, go to bed early, that is sunnah, and get enough sleep. So you can get up for Fajr on time, inshallah. Never skip food, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Always try to feed your brain with enough oxygen, enough supply. As I said, eat limited food, avoid junk food. They may taste awesome, they may taste great, like pizza, burgers, Chinese, but they lead to a lot of problems, including obesity, and that can lead to bullying and other problems, of course, later on in life. But for a teenager, it can be a big issue. And exercise. Always opt for this habit. Simple things, like this would help maintain a healthy weight and maintain your diet. And go for a balanced diet with fruits, veggies, dal, pulses, milk for the calcium, for the carbs, for the proteins, dry fruit, especially almonds. It's very good for your brain. Avoid any processed food, fried food, packed foods. So, we can encourage moms, we can give our children smoothie bana ke de diya, fruits ke, usme kuch vegetables bhi dal diye. फिर pulses, दही, बादाम, vitamin D की बहुत जरूरत है. And exercise. आजकल लॉकडाउन में you'll say where to exercise. Well, अपने backyard में एक basketball का hoop डाल दो और ball दे दो and let children play. Just jump around. So these are the few things, practical tips we can encourage our children. So pani, general water serve between age 4 to 8. कम से कम 5 गिलास पानी, 9 से 13 साल को 5 से 6 गिलास पानी per day, and उसके ऊपर at least 5 to 8 glasses of water. So eat healthy, drink more juice, exercise, drink water, healthy diet, plan your diet, limited खाओ, लेकिन time पे खाओ, एक chart बना लो, है ना? So all good small tips is I usually show the girls the pads, panty liners, maxi pads for overnight. And एक बहुत जरूरी है उनको आदत दिलाएं, give them a calendar to make a habit of marking their periods.
Another cute thing that I hand out, it's a card that says, Allah has chosen today to make me a young woman. So we give this to their moms so they can give it to their moms and let them know the day they get them, because they might feel so shy to say. So, I find it easier to show them this. And we don't go too much in detail initially, just a diagrammatic of the uterus and all. So ask them to use a pad to wear with the underwear and change the pad as often as you want, as often as you feel dry. Be prepared, yes, as we said before. And at any point in school, if agar leak ho jaye, unko samjha de, explain to them, just excuse yourself, go to the office and get them to call your mom to bring something to change if you didn't have anything, and this clothes, you put them aside and don't wear white or light colored pants or underwear during the week. So there's no visible leakage as well. And unko cramps ho jate hain during periods because unko samjhaye the uterus is contracting. So a hot water bottle will be the best gift you can give them. And unko achha warm soup, warm tea, cuddle, lots and lots of cuddles with your mom. Okay, and tell them it's okay. You can take pain medication, Crocin, Nurofen. It's perfectly fine. Also, let me tell moms that it is perfectly normal not to have a regular pattern in the first few months when the period starts. So, they might skip a month or skip 2 months, or they might have 3-4 times a month, as long as it's not too heavy. If it is, then of course we give some iron supplements, iron syrup to them, and lots of diet rich in iron, beetroots, spinach, lots of dried apricots, like that. Start keeping a calendar and keep track of the habit. Okay, and then of course teach them how to wrap their pad and throw it in the garbage. It's bad manners to keep them out. It's and not to flush it down the toilet, because they're not a kid anymore. They have to be a proud, clean Muslimah. During the period, of course, explain to them that you're excused from Salah because it's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. He knows how much a woman is suffering, so he wouldn't give you an extra burden. But that doesn't mean you cut all your connection with Allah. Make wudu, sit and make zikr, dua, durood 5 times a day. So you don't lose the habit of praying 5 times. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said a woman can neither pray or fast during her menses. So, and also you don't have to make up the salah which you have missed, but you have to make up the missed fast after Ramadan. Okay. Now coming to a bit about the emotional changes that teenagers go through, like anger, frustration, sensitiveness, awkwardness, irritability, loneliness, self-consciousness. So we need to support our teenagers, especially when they have anger issues. So anger management, we explain to them, when you get angry, say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, say Durood Sharif, dimag ko thanda karta hai, it cools your mind. Train them to take deep breathing exercises. If they're angry and they're standing, make them sit. If they're sitting, let them lie down. Because nowadays, this attitude problem is there in teenagers. Me, I, taking khud ko credit dena. We should teach them and inculcate the values कि दूसरों के सामने अपने आप को छोटा समझना, दूसरों को माफ करना. Allah doesn't like kibr. Allah को बिल्कुल नहीं पसंद. उनके दिल में ये बिठाएं. Feel loneliness is another issue. So don't ever let that creep in their mind. Let them never feel that they're lonely. Always Allah subhanahu wa ta'ala is with you. He's so close to you. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अपनाएं. उनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन सब्र, उन्होंने कितना सब्र किया, तो हमें भी सब्र करना चाहिए और अल्लाह को याद करें. अल्लाह कैसे अपने करीब हमें करेंगे, और गुस्सा को काबू में करने का, we have to teach them how to keep our anger under control. So and be steadfast on our ईमान, ताकि जन्नत में हमें अच्छा मकाम मिले. उनको ये समझाएं कि हमें अपनी मन चाहे जिंदगी नहीं जीना है, बट अल्लाह की रजा वाली जिंदगी जीना है. जो हम चाहते हैं अल्लाह हमें देंगे. अगर हम अल्लाह की हुक्मों को करने वाले बनेंगे, तो अल्लाह वही करेंगे जो हम चाहते हैं. So we explain to them. तो फिर हम be a good friend to them. पेरेंट को ध्यान रखना है कि उनकी सिचुएशन समझें. So be a friend to them, share their feelings, make them feel comfortable. उनको लगे कि my mother is my best friend, and let them share their deepest, darkest secrets with you.
And don't let them feel like if I go to my mom, wo chillayenge, she'll shout at me. No, then they will not come to you. Because hum bhi to is age se guzre hai na. We have also gone through this phase. Hum parents instantaneously, no, we have a habit of reacting. We should try not to do that. We should not react, but stay calm and in a really friendly relationship build kare. You know, because already children are going through so much of hormonal changes. बच्चे के साथ इतने सारे तो changes हो रहे हैं body में, hormones में, दिमाग में, emotions में. So they may, अगर कोई incident हो, they should trust you so much कि सबसे पहले आपसे share करें. And that is what we want. So we have to strike this fine balance, and that is the key in this delicate relationship. So always remember, teenagers are maturing. Their mind is maturing, their emotions, their heart. We have to be an active, proactive parent, but at the same time, we should learn when to step back a little bit. Okay, but all within the boundaries of our deen. Next thing I would say is always appreciate our children, applaud them, and especially on the achievement. बच्चों की तारीफ करें, उनका achievement पे खुशी जाहिर करें. If we don't praise them, then what will happen? They will not only look elsewhere for appreciation and praise, but it will also lead to weakening of the parent-children relationship. So before sharing their happiness with anyone, they should come running to you to share it. And they should feel safe, protected, and appreciated. And in turn, they will not go astray, inshallah. So I'm not going to take much more time. I'm just going to briefly, these are a few things I had come across, which I found it quite useful. Like we could encourage children to write in little, small books, Nia journal. They make a Nia, today I'm going to do this week I'm going to do this, planning things. Shukr journal of what am I thankful for. The Asmaul Husna journal, what names of Allah subhanahu wa ta'ala with meaning and reflect on them. Quran journal, okay, today I've read on this day, this surah, this verse, translation. What did I learn from it? What inspired me from this verse? And a bit of tafsir and reflection. Hadith journey, a bit, one hadith every day and then, or every week. And then what was my reflection? Think about this. This is the age to make them develop and mold them, into this journey. My dua journey, what dua I have done for myself, for my life, for my parents, for my family, for others. So shukr journey, what am I thankful for? Before they go to bed, maybe make them a habit. Write 3 things you have been grateful for. Alhamdulillah, for what? For and why? So this way they'll learn to appreciate. Psalm journal. Today, give them a sticker for having prayed on time, all their prayers. Dua journal, hadith, all this little small Nia journal. Today is when I've done intention. When will I achieve it? How will I achieve it? And did I achieve it? And revisit it regularly. So these are a few things I found it useful. And so we should be very grateful for everything, for myself, for others, inshallah. Jazakallah khair for giving me a year. I hope I haven't taken too much time. Jazakallahu khairan kasiran, Dr. Shahnaz. That was a wonderful session, alhamdulillah. I'm sure हमारे mothers ने काफी benefit किए होंगे इस session से. हमारे बच्चों के issues और problems के solutions तक हमको पहुंचाने के लिए अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे. So now, let me introduce you to our next speaker, Mrs. Tamim, who is a mother, a student of psychology, a student and teacher of Islam, and my colleague. She is pursuing her certificate in Islamic psychology, mashallah. Mrs. Tamim, please tell us more about the attachment styles. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Today I'm here to speak about the attachment of the child. We all know
begins as soon as the conception period starts, right? The moment the child comes into our hands, and if the child does not get the required attachment, the child growth and development is weakened. अस्सलाम वालेकुम. Dear Umme Tamim, आप please Urdu English थोड़ा mix and match, make it bilingual. Okay, no problem. Am I audible? But जी अल्हम्दुलिल्लाह. Ji, Alhamdulillah. Right? The initial stage of the child, maybe you can say 0 to 3 or 0 to 5 or 0 to 6, is the actual development stage, trust stage, security stage. अगर वो बच्चे को नहीं मिलता है that love, that affection, so that person is weakened. The child is weakened. And we have to remember this thing. जो mom का attitude होगा, वो ही बच्चे का attitude बन जाता है. Right? If mom is डरी सहमी है, तो बच्चा भी डरा सहमा रहेगा. ठीक? And अगर mom is, confident enough, तो बच्चे के अंदर भी वो confidence आ ही जाता है. Right? So let's see the attachment theory, attachment styles. Basically, there are two styles of attachment. One is secure and another one is insecure. So insecure is having three things. Let's see secure attachment first. Over here, you can see it in the image. जो mom है, she is very organized, she's very planned. बच्चों को time से खाना खिलाना है, बच्चों को time से सुलाना है, and she fulfills all the needs of the child. बच्चे को कुछ चाहिए, okay, here it is. You need chocolate, okay, it is here. Or you want some party time, okay, chalo, let's go for a party. Or you need some dining outside, chalo, let's go. ठीक? Mom is there to fulfill the needs, and even the child is then obedient. And the child, is expressive, and मुंह खोल के अपनी wish, अपनी desire बोलता है बच्चा, and trust है mom पे. Why? Because माँ उसके लिए हर वक्त हाजिर है. But अगर ये secure attachment उसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो that can lead to some side effects also. It is a saying, किसी भी चीज की ज़्यादती नुकसान दे जाती है. Over here also it is same. If you're good with your child, if you're very loving with your child, you're fulfilling all his needs, it is amazing. You're an amazing mother. You're on time, you're on schedule, you have your plans, you have your child's plan also, alhamdulillah. It is amazing. Then comes the second attachment style, which is insecure. Insecure mein, let's see the first one, ambivalent. Ambivalent mother कैसी होगी कि कभी खाना खिला दिया on time, कभी नहीं खिलाया, कभी बच्चे की सारी विशेस पूरी कर दी, कभी नहीं पूरी करी, और कभी बच्चे को ऑन टाइम सुला दिया, कभी ऑन टाइम नहीं सुलाया. इट्स ओके. शी इज इनकंसिस्टेंट, शी इज नॉट ऑन हर टोज ऑल द टाइम, तो बच्चा भी वैसी होगा. ठीक है? ही नोज बच्चे की भी टैंट्रम्स है ना, मॉम के मूड को देखकर होते हैं. ही नोज कि मुझे अगर मेरी मॉम स्ट्रिक्ट है तो मुझे कौन से टैंट्रम्स देने मेरी माँ को. अगर मेरी मॉम इज वेरी लीनियंट, बच्चा ऑल्सो नोज हाउ हैव टू डील विथ हर. Kids are also, alhamdulillah, very smart. So over here, the ambivalent attachment child will be, little cranky baby, basically, a complaining child. Looking to the next attachment, avoidant. Over here, the mother will be completely, not completely, but partially distant from the child. And she will have little or no attachment with the child. ठीक है, बच्चा हैगा, ओके, अपने काम कर रहा है, ओके, करता रहे. Mom is into her work. She will notice what her baby is doing, but she will not go and interrupt the child, or neither the child will come and interrupt the mother. कि मम्मी क्या कर रही हैं आप? हाँ मम्मी, अगर बच्चा करेगा भी तो भी माँ जो है उसको कुछ भाव देने वाली नहीं है. Here it is avoidant attachment. Coming to the next attachment, disorganized attachment. यहाँ पर जो न्यू मॉम्स हैं तो they are little confused और डरी हुई हैं कि बच्चे को 2.5 ml दूं या 5 ml दूं.
2.5 ml or 5 ml. अच्छा, this is 4 drops or this black medicine or black वाले 4 drops देने और या red वाले 4 drops देने. Little confused है mom. या तो वो खुद डरी हुई है या तो वो डराती है. ठीक है, बच्चे को बंद कर देना, एग्जैगरेशन, जितनी गलती नहीं थी उससे ज्यादा उसको डांटना, उससे ज्यादा उसको मारना. और या शी इज ऑन सम पिल्स एंड शी इज हैविंग सम मूड स्विंग्स, तो सारा असर जो है ना बच्चे पे निकलता है. तो ओवर हियर द चाइल्ड विल नॉट हैव अ वेरी गुड अटैचमेंट विथ हर मदर. उस बच्चे को आप स्ट्रेंजर के साथ छोड़ दो या अपनी माँ के साथ है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ही शेयर्स द सेम comfort level, or you can say no comfort level, with the stranger as well as the mother. The stranger and the mother is same for the disorganized attachment style. Now हमें लगेगा नहीं, हम तो we are into secure attachment only, but at times we rotate in all these 4 attachments. Sometime I may be avoidant attachment when I'm watching some web series or when I'm watching some serial, or when I am into some deep conversation, or I have my workplace call. How do I treat my child? How do I treat my child? I tend to completely ignore, right? Completely ignore. तो वो automatically avoidant attachment हो गया. I give importance to my web series. I give importance to that phone call. Then at times situation will be like, you're cooking in the kitchen and your child comes, mama, mujhe wo chahiye. Maybe some toy or some chips and chocolates, which is not under your reach at that time. What do you tend to do? अच्छा मैं देती हूँ. अच्छा, okay. Then झटक पटक थोड़ी सी आ जाती है. Then at that time it is ambivalent attachment, because you are ready to fulfill the need, but not maybe immediately at that time. So we rotate. कभी secure में होंगे, कभी हम ambivalent में होंगे, कभी हम disorganized में होंगे, कुछ ज्यादा stress आ गया, कुछ ज्यादा problems आ गई, तो giving a call to your sister and saying यार मैं मेरे बेटे को भेज रही हूँ या मैं मेरे बच्चे को भेज रही हूँ, I don't want to see his face, or I'm in no position to handle my child at this moment, at this time of hour. So we are sharing at that moment disorganized attachment with our baby. No, we do not tend to ask them, bete tumhe jana hai, nahi jana hai. Whenever you want to send your child to your aunt's place or to the child's aunt's place, and your child is sensible enough to speak, ask them, give them a choice. You want to go to office or you want to go to your aunt's house? Let the child decide. हमें हमारे decisions बच्चों पे थोपने नहीं है बिल्कुल भी. Starting from literally 1 year of age. And then coming to the second part. जब बच्चा घर से बाहर से अंदर आ रहा है, now तो you have send your child somewhere. जब बच्चा घर के अंदर आ रहा है, then ask them what did he or she do? क्या करा आपने? Where did you go? What did you do? What did you eat? Ask him. Make his or her habit कि वो आपसे tiny details, tiny information अभी से share करे. Yeah, then the parenting attachment or the parenting style. एक non-Muslim mom और एक Muslim mom का same होना चाहिए, different होना चाहिए. Am I audible? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं मेरी बात convey कर पा रही हूँ? The parenting style or the attachment style जो एक non-Muslim mom का है और Muslim mom का same होगा, different होगा. The upbringing should be same or different, है ना? The non-Muslim mom जो है अपने बच्चे को सिखाएगी कि
the pen which is in my hand, for example, कि ये जो है कौन लेकर आया? So the child will be like, my father brought it, or my uncle, or my dada brought it. She'd be like, okay, हाँ, you're right, दादा लेकर आए थे. And Muslim mom क्या होगी? Nurturing ईमान के अल्लाह ने दिया है. Who has given you food? Allah has given you food. जब हम हमारे बच्चों के अंदर ईमान की बात करेंगे, ईमान को डालने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा बच्चों के साथ अटैचमेंट जो है ना, जी अल्लाह गेव, तो ऑटोमेटिकली हमारा बच्चों के साथ अटैचमेंट डे बाय डे ना अच्छा होता रहेगा. We will be on our toes, we will be on our minds. हमारी जो दिमाग होगा ना वो बिल्कुल ठीक होगा. Because as a new mom or a mom of 0 to 6 या तले ऊपर के बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनकी मॉम्स हैं, या फिर you have बहुत ज्यादा घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, or you are a working mom, तो you have your offenders, but you cannot transfer or you cannot give all that negativity to your child, right? One of the non-Muslim lady, she said कि यार मेरा बच्चा तो सुबह 4 बजे उठ जाता है और रोता रहता है. And same thing, a Muslim mother from Norway, she put up like this कि my baby wakes up at 4 a.m. and I give him feeder and I'm very happy कि वो 4 बजे उठता है, क्योंकि मुझे उसकी वजह से अल्लाह से मुलाकात करने का मौका मिलता है, मुझे उसकी वजह से तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता है. सुभान अल्लाह. Thinking of moms also change. So if you are a mother of a tiny little baby जो उठता है या उठती है, तो take it as a blessing. If it is 3 p.m. or 3 a.m. or it is 4 a.m. or 4:30 and you have tahajjud time, pray tahajjud. Work your connections with your Lord. The attachment वहां पर अच्छा होगा, automatically the attachment with the child, the attachment with all the family members will become better and best. And then one of the ladies, she said, I don't get time throughout the day to plan my day. I'm a busy mother of 3 kids plus responsibility of kitchen and in-laws. And उसने आपको पता है क्या बताया? What time she plans her day? Or when does she has a me time? It was Qiyamul Layl. I wake up in Qiyamul Layl and I plan my day. I list out कि मुझे क्या बनाना है, क्या खाना है, और क्या बच्चे को पहनाना है, क्या जरूरत है. My grocery list, everything Qiyamul Layl में. That is my planning time. Subhanallah. So what we have to do is just decrease 15 minutes maybe or 10 minutes initially, and we have to stand for tahajjud. Subhanallah. These are live examples from people. And then, for example, you are a secured mother and you happen to be busy in kitchen maybe, or you happen to have a wedding at your house or a guest or a party at your house, and you know that you cannot give time to your child for probably 1 hour. तो आप 1 hour के लिए अपने बच्चे को set करें. Today it is very difficult कि आप अपने बच्चे को device से, gadget से बचाएं. If you happen to give them gadgets, make it a point कि आप उनको कुछ useful, beneficial दिखाएं मोबाइल पे या iPads or screen, whatever you're using, and then sit with them and ask them what did they see, what did they watch, क्या देखा आपने बेटे. And ये मोटू पतलू and these kind of serials or series से हम जितना बचा पाए अच्छी बात है. And क्या देखा, tell them to express their feelings, their thoughts, their views, ताकि बच्चे की अगर कहीं नेगेटिव नर्चरिंग हो रही है तो वो मुझे अभी के अभी पता चल जाए. And investing in games is a very good option, but not playing with your child is not. अगर आप कोई भी गेम्स ले रहे हैं, make it a point कि आप अपने बच्चे के साथ बैठे and वो गेम्स को खेलें या बच्चे को खिलवाएं. The initial stage again, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5 is a trust development. अब 1 साल के बच्चे को ही देख लीजिए कि कैसे आप उसको बेड पे खड़ा करते हैं और आप कहते हैं आ जाओ, तो वो
आंख बंद करके या आंख खुली रखकर भी धड़ से कूद जाता है पलंग से, बिकॉज ही और शी नोज कि मेरी मॉम मुझे बचा लेगी. Why? This is trust. Peekaboo, that aita, that game, हम हमारे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, and again that builds trust and affection. So spending time with your child is very important. My kitchen time जैसे करते हैं हम, या बच्चों की फीडिंग टाइम, बच्चों का स्लीपिंग टाइम, इसी तरीके से बच्चों का टाइम और अपना टाइम साथ साथ रखें. If it is my namaz time, it has to be my child's namaz time also. मेरी जय नमाज के बाजू में मेरे 2 साल के बच्चे की जय नमाज, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, बिकॉज 7 साल तक की उम्र तक नमाज नहीं है. 7 years में नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर मारो, हदीस पाक का मफहूम है. तो 10 साल तक के अगर बच्चा आपका लड़का भी है तो उसकी जिम्मेदारी नमाज की आपके ऊपर है, राइट? तो नमाज टाइम जब होगा ना, हम क्या करेंगे? जब वी आर रिसाइटिंग कुरान, व्हाट डू वी टेंड टू डू? मुझे सुकून से पढ़ने दो, मुझे नमाज ही नहीं पढ़ने देते हो, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देते हो. नहीं, बच्चे का भी कुरान टाइम साथ में. 2 रुकू कम पढ़ लीजिए या 2 पेजेस कम पढ़ लीजिए, बट मेक इट अ पॉइंट कि आपका बच्चा भी कुरान पाक खोले, या वो इतना छोटा है कि वो कुरान पाक को नहीं समझता है तो मे भी नूरानी कायदा खोल ले, या मे भी अपनी कोई पिक्चर बुक उसके पास हैगी, अल्फाबेट्स बुक है या कलर बुक है, तो वो ओपन कर ले. इवन अ चाइल्ड ऑफ 1 year और मे बी 1.5 year बहुत अच्छे से नमाज की मिमिक्री कर सकता है. तो उसकी जो नमाज बिछा लीजिए अपने पास में. हाँ, जस्ट सी, आपको कभी डिले हो जाएगा नमाज को, या आप नमाज आपने नहीं पढ़ी होगी ना, आपका बच्चा कहीं से नमाज उठाकर लेकर आ जाएगा एंड वो नमाज पढ़ रहा होगा, उसे पता भी नहीं होगा वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है. ही विल बी डूइंग एक्शंस. आप दुआ मांगिए, आवर टाइम, आवर फैमिली दुआ टाइम, कि 5 year old 4 year old चाइल्ड इज सेंसिबल इनफ, समझता है बच्चा सारी बातों को. आप अपने बच्चों से क्या चाह रहे हैं, अल्लाह से कहिए बच्चों के सामने, ताकि बच्चे के कान में भी जाए कि अच्छा माय मदर वांट्स दिस फ्रॉम मी, अच्छा मेरी मम्मी चाहती है कि मैं फर्माबरदार बन जाऊं, अच्छा मेरी मम्मी चाहती है कि मैं है ना अपनी छोटी बहन को नहीं मारूं. आमीन. नो, दिस थिंग, this development, this attachment is very very essential. और ये attachment हमको अलग से नहीं करना पड़ेगा, ये चीजें हमें अलग से नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ में हमारे साथ साथ हो जाएगा. Then one of the issue came कि जॉइंट फैमिली, जैसे किसी का मैसेज है तो मुझे वो इशू याद आ गया. जॉइंट फैमिली है हमारी एंड हम तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बट माय 5 year old चाइल्ड वो जिद करता है कि उसके ताई की बेटी जो है कजिन, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो तो मेरी भी बर्थडे सेलिब्रेट होनी चाहिए. तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि बर्थडे इज जस्ट व्हाट, न्यू क्लोथ्स एंड केक कटिंग एंड सम गिफ्ट्स, राइट? तो वो न्यू केक गिफ्ट्स एंड केक कटिंग आप उसको किसी और ओकेजन पे दीजिए. आप बच्चे को स्ट्रिक्टली अगर आप कह देंगे कि नो हम बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, नहीं हम नहीं करते हैं, ये बच्चा नहीं समझेगा. बच्चे को ओकेजन चाहिए बेसिकली, तो गिव हिम दैट ओकेजन. अल्हम्दुलिल्लाह आप ईमान वाली माँ हैं, और तो आपको ये पता है कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए. उसको गिव हिम हर और हिज फ्राइडे, oh it is जुम्मा and we're going to wear new clothes. आप भी नए कपड़े पहनेंगे, मैं भी नए कपड़े पहनूंगी. अपनी इस्तेदाद के हिसाब से हर जुम्मे को नए कपड़े पहन सकते हैं तो सुभानुल मलिकुल कुद्दूस हर जुम्मे को पहने. गेट द क्लोथ्स स्टिच एंड वेट फॉर फ्राइडे. नहीं तो 2 Fridays, नहीं तो एटलीस्ट महीने का 1 Friday आप बच्चे को दीजिए. दिस इज योर न्यू क्लोथ्स, इट इज फ्राइडे, इट इज बिरयानी डे, सुभानअल्लाह. और इफ द चाइल्ड हैज अचीव something, for example उसने एक सूरह याद कर लिया है, या some extracurricular activities में he was good and he was wise enough, gift him a cake. Kids love cake. Bake a cake for your child or gift him a cake, give him some gift, make him realize that कि ये हमारे occasions है. अच्छा मैंने मेरी जो भी studies है extra curricular, I have stood first, or I have completed my Surah Mulk hifz. So here is the celebration. Give him a party.
हमें हमारे बच्चों को ओकेजन्स देने हैं, एंड इन ऑल दीज ओकेजन्स हम हमारे बच्चों के साथ हमारा बॉन्ड, हमारा अटैचमेंट अच्छा होता रहेगा, बिकॉज स्ट्रिक्टली सेइंग नो इज नॉट अ सोल्यूशन. Right, there was an activity which I was supposed to do is how many times in a day we say no to our child. हमें नो बच्चों को कितनी बार बोलते हैं, नहीं ये नहीं खाना, नहीं अभी नहीं, नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, नहीं चाबी नहीं मिलेगी, नहीं तुम नहीं जाओगे, यू नो, नहीं जैसी चीज नो हमें बोलना ही नहीं है बच्चों के साथ. We don't have to give that negativity. We have to use good positive words. अच्छा okay, finish this and then you can take. अच्छा मोबाइल आपको क्यों लिया, नहीं लेना था, नहीं you don't have to be harsh. अच्छा ठीक है अब ले लिया ना, ओके कितनी देर में वीडियो कंप्लीट हो रही है, ओके 2 minutes, ओके 5 minutes, फाइन 5 minutes के बाद टाइम अप, ओके. या फिर आपको पता है कि आपका बच्चा कुछ जिद करेगा इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, ना आपको पता है आप उसको नो नहीं ना करने वाले हो, वो चीज उसके सामने से पहले से ही हटा लो ताकि कोई सीन ही क्रिएट नहीं हो. एंड ऑलवेज दैट शाउटिंग फिगर या फियर फैक्टर फिगर हमें हमारे बच्चों को शुरू से फादर को दे देना है. बच्चे का बाप जो है वो फियर फैक्टर बन जाए, वो डराने और मारने वाला बन जाए. बिकॉज मॉम्स जो होती हैं अगर वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बच्चा भी बज़दिल हो जाता है और घर का माहौल भी खराब हो जाता है. एंड द हस्बैंड आर लाइक यू नो कितना चिल्लाती हो तुम, सुबह भी शोर, शाम को भी शोर, कभी तुम्हारा कभी बच्चों का. डू नॉट शाउट, गिव योर हस्बैंड द अपॉर्चुनिटी. आप चिल्लाएं, आप समझाएं, एंड यू बी दैट गुड काम फैक्टर. And then winding up with one thing, एक बच्ची, she got newly married and she had a child with again a household responsibility. उसने अपने वालिद साहब को कॉल करा and वालिद साहब was not very दीनदार नहीं थे, but जो उनका जवाब था कि जब उसने ये शिकायत करी कि मेरे पे इतने काम है, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मुझे थकान सी है दिन भर, तो द स्वीट फादर व्हाट ही सेड इज तस्बीह फातिमा, बेटी तुम तस्बीह फातिमा पढ़ा करो. एंड ही वाज नॉट अ दीनदार फादर अगेन, बट अल्लाह पाक ने यू नो बाप के जरिए से इतनी प्यारी बात कहलवाई कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि तस्बीह फातिमा काहिली सुस्ती का इलाज. एंड एक मुलाजिम एक गुलाम से भी ज्यादा बेहतर, जब उनकी बेटी बीबी फातिमा आई उनके पास एक मुलाजिम मांगने के लिए, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह फातिमा दी. तो व्हाट इज तस्बीह फातिमा माय डियर सिस्टर्स? इट्स 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर. कब पढ़ें? इंशाल्लाह सोते वक्त. वैसे हर फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे नबी ने एज अ मुलाजिम अपनी बेटी को गिफ्ट करी ये और कहा कि सोते वक्त पढ़ना. We need that extra power. We need extra energy. We all are active mothers and we all have to do loads. सबकी खिदमत भी करनी है. Maybe इसमें से कोई हमारी working mom भी हो, तो we need energy. We need energy bar. We need vitamins bar. तो इंशाल्लाह ताला तस्बीह फातिमा से लेंगे and we'll be a very very good moms. And in all this, do not forget to take care of yourself, because when you will be good, when you will be cool, तभी आप अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरती से कर सकती हैं. Remember that you are a mom and you have your life. Give yourself a massage, give yourself me time. डेली अपने आप को भी मी टाइम दे. वो जैसे किसी ने कयामुल लैल के टाइम मी टाइम बना लिया, आप अपना मी टाइम कभी भी बना ले दिन में. And just see how changed you will feel. Jazakallahu khair. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन मिसेस उम्मे तमीम. आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे मदर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया ये समझना कि उनके बच्चों से अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है और वो अपने पेरेंटिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं टू बिकम बेटर पेरेंट्स. So one quick announcement before we proceed. Inshallah कल Tuesday 14 September शाम 7:30 एक powerful session है जिसका टॉपिक है freedom from depression, anxiety and negative thoughts.
ये प्रोग्राम विमेंस विंग के यूट्यूब पे लाइव प्ले होगा और इंशाल्लाह जूम पे भी चलेगा, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ मैटर्स. So now, moving forward, let me introduce you to our last speaker for today, myself. Sorry, but आपको फिर से हमारी ही आवाज सुनना पड़ेगा. So jokes apart, let us begin. Inshallah. इंशाल्लाह अभी हम बच्चों के साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बच्चे आपके पास अल्लाह की एक अमानत है. अल्लाह ताला उनके बारे में आपसे पूछने वाला है और उनको सिखाना, वो क्या सीख रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सीखते कैसे हैं. सो लेट्स कंसिडर राइट फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड इज बोर्न. हमारा बच्चा कैसे बोलना सीखता है, वो चलना कैसे सीखता है. खुद से तो उसको नहीं आता है, राइट. वो हमको देखकर, वो हमको खड़ा देखकर वो उठने की कोशिश करता है. वो हमको बोलता हुआ देखकर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है. इनिशियली वो मुंह के मुंह में कुछ बोलने की कोशिश करता है, विच वी डोंट अंडरस्टैंड, राइट. हमको देखकर हम करने की कोशिश करते हैं, वो हमको देखकर सीखता है. तो बच्चे ऑब्जर्व बहुत करते हैं और वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. बच्चों से बड़ा कॉपी कैट कोई नहीं होता है. कि तो आपने देखे होंगे, जैसे अभी हमारे सिस्टर हमको एग्जांपल दे रहे थे कि अब जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं, आप उनके सामने अगर नमाज पढ़ रहे हो तो वो आपके जैसे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो उनको सजदा करना आता तो नहीं है, बट वो आके जानमाज पे सो जाते हैं. तो वो कोशिश करते हैं नमाज पढ़ने की, वो हमको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. तो जो भी वो देखते हैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. बट हम तो यहाँ पर टीनेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो वो तो 1-2 साल के बच्चे हैं नहीं जो हमको देखकर कॉपी करेंगे. फैक्ट, बहुत सारे टीनेजर्स अभी तक, उनके टीनेज तक अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. हो सकता है कि वो सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं. अगर आपको वो हमेशा कुरान और नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, अगर आप हमेशा उनके सामने कुरान और नमाज पढ़ते हैं, तो वो आज नहीं तो कल वो अडॉप्ट करने ही वाले, वो चीजों को वो सीखने ही वाले हैं. वो चीजें आप उनके अंदर देखोगे ही इंशाल्लाह, गारंटीड. ओके, सो हम कैसे सिखाए हमारे बच्चों को. हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कुरान में, जो चैप्टर 31 सूरह लुकमान. सो फॉर दोज हु डोंट नो, लुकमान अलैहि सलाम एक प्रॉफिट है और कुरान में अल्लाह ने उनकी जो नसीहत है, जो अपने वो बेटे को नसीहत कर रहे हैं, वो पूरा बयान किए हैं सूरह लुकमान में. तो व्हाइल एड्रेसिंग हिज सन, लुकमान अलैहि सलाम बोलते हैं या बुनैया. तो इतने प्यार से वो अपने बेटे को बुला रहे, ओ मेरे बेटे. तो अगर कोई भी, हमको भी इतने प्यार से कोई हमको बुलाता है, अभी भी इतने बड़े होने के बाद भी अगर कोई हमको प्यार से आवाज देता है, तो हम उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट. हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो सिमिलरली इतने प्यार से वो अपने बेटे को सिखा रहे हैं. तो ये चीज हमको लुकमान अलैहिस्सलाम से सीखना है. बच्चों से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने अपने बच्चे से बात करें, तो हमारा मतलब पूरा अटेंशन मतलब जो बच्चे हैं उनका पूरा अटेंशन हमारे तरफ आ जाना चाहिए कि हम उनको इतने प्यार से जब बुला रहे हैं तो पूरी तरह वो हमको अटेंड कर रहे हैं. कि अनदर थिंग लुकमान अलैहिस्सलाम टीचेस अस कि हम अलग अलग क्रिएटिव मेथड्स यूज करके उनको सिखाएं. अभी जैसे हमने इससे पहले सेशन में सुने कि अलग अलग तरीकों से ट्राई करना है. अगर एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ट्राई करो. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी. एज मदर्स, एज पेरेंट्स, हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे. तो आप एक तरीका नहीं चल रहा है, आप दूसरा ट्राई कर रहे हो. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आपको टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल ऑल्सो गेट इट एंड दे विल ऑल्सो गेट इट इंशाल्लाह. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले खुद वो करें जो हम हमारे बच्चों से चाह रहे हैं. अगर हम हमारे बच्चों को हर चीज के लिए मना करते हैं, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, और हमारा बच्चा क्या देख रहा है कि हम पूरा दिन टीवी के सामने बैठे और हम खुद पूरा दिन टीवी देख रहे हैं,
तो वो आपकी बात कैसे सुनेगा? आपका बच्चा आपकी बात कैसे सुनेगा जब जो चीज से आप उसको मना कर रहे हैं वो खुद आप चीज पूरा दिन कर रहे हैं? आपको चाहिए कि आपके बच्चों को एकदम छोटी एज से सिखाना चालू कर दें। अगर आपका 5 साल का बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपका 13 ईयर ओल्ड का बच्चा आपकी बात नहीं सुनने वाला है। अगर आप पहले से ही उसको ऐसी हैबिट डालेंगे कि जैसे हमने अटैचमेंट स्टाइल्स देखे अभी, कि अगर पहले से ही हमारा बच्चा हमारे से अटैच्ड नहीं है और वो पहले से ही हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो वो बाद में जाकर आपकी बात नहीं सुनने वाला है व्हेन दे टर्न इनटू अ टीनेजर। बिकॉज टीनेजर में उनको ये लगने लगता है कि हम अभी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो तब वो आप नहीं सुनने वाले अगर आप पहले से उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल में नहीं रख रहे। तो लिटरली हमने 3 साल के बच्चों के माओ को बोलते हुए सुने कि हमारा बच्चा तो हमारी बात नहीं सुनता है, हमारा बच्चा तो ऐसे ही करता है, उसको तो ऐसी ही आदत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो ऐसे ही है। बट अगर हम ये सिर्फ 3 साल के बच्चे के बारे में हम ऐसे बोल रहे हैं कि उसकी तो आदत है ऐसी, तो फिर आप एज अ पेरेंट आप कैसे वो चेंज लाओगे आपके बच्चों में? हम ही है जो हम कर सकते हैं कुछ। आप ऐसे नहीं बोलना है कि हम क्या कर सकते हैं, आप ही है जो आप सब कर सकते हैं। हम अभी उनको हैंडल नहीं करेंगे तो शायद आगे कभी भी करना मुश्किल होगा। ओके, बट इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी आपके बच्चे अगर टीनेज में भी जा चुके ऑलरेडी, तो आप अभी भी फोकस करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपके बच्चों को टाइम दो, उनको अटेंड करो। उनको अभी आपकी जरूरत है, जब वो टीनेज में है तब उनको आपकी जरूरत है। एक बार वो 20 क्रॉस कर देंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाने लगेंगे, उनको तब आपकी जरूरत नहीं होगी, तब शायद आपको उनकी ज्यादा जरूरत होगी। और अगर उनकी जरूरत के टाइम आप उनके काम नहीं आए तो वो शायद ही आपको कंसिडर करेंगे क्या आपकी जरूरत में वो आपके काम आए। तो बच्चों को हमको क्या सिखाना है, ये तो हमने देख लिया क्या सिखाना है, बट क्या सिखाना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सूरह लुक़मान में है। जो उनकी नसीहतें हैं उनके बच्चों के लिए वो काफी है एक बच्चे को अल्लाह से नजदीक करने के लिए। उन्होंने पूरे इस्लाम को समराइज कर दिया उनके बेटे के लिए। या बुनैया बोल बोलकर उन्होंने ओ मेरे बेटे बोल बोलकर उन्होंने पूरा उनको इस्लाम सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, तो बच्चा सता रहा है तो लॉकडाउन में बोर हो रहा है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, फोन या टीवी लगाकर दे देते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं। अभी हमारे बच्चों के पेरेंट्स कौन है, जिनको हम टीवी पे जो वो देख रहे हैं, मोटू पतलू है उनके पेरेंट्स है शिनचैन। वो उन्हीं से सीख रहे हैं बिकॉज वो चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उनको वो अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो उनसे सीख रहे हैं। आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको मना कर रहे हो हर चीज के लिए, ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। तो वो किससे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो मोटू पतलू और शिनचैन से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वल्लाही हमने ऐसे बच्चों को देखे जो लिटरली, हम मजाक नहीं कर रहे, हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, जो कार्टून के जैसे बात करते हैं। उनकी टोन ही ऐसी होती है जैसे हम कार्टून में देखते हैं। डेली लाइफ में हम बोल रहे हैं, ऐसे बात करते हैं कि ऐसे चलते भी है जैसे कार्टून चलते हैं, वैसे बात करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि कोई कार्टून ही बात कर रहा है, उनका टोन ही वैसा होता है। So where are we heading? Where is the Muslim Ummah heading? 3-4 साल के बच्चे नाउजुबिल्लाह आइटम नंबर्स गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और उनके मुस्लिम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके मुस्लिम पेरेंट्स हंसते हंसते वीडियो ले रहे हैं और उनके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को भेज रहे हैं कि ये देखो हमारा बच्चा कैसे डांस कर रहा है। जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा बच्चा क्या समझ रहा है, हमारा बच्चा समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उसको लग रहा है कि मेरे को अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म अगर हम देखा जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनका रिवॉर्ड क्या है कि सब खुश हो रहे हैं उनसे, तो वो चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। और वही बच्चा जब 13-14 इयर्स का हो जाता है और फिर वो हमको बोलता है कि हमको स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, तो हम क्या बोलते हैं, इस्लाम में अलाउड नहीं है, या हम उनको मना कर देते हैं। लेकिन जब वो छोटा होकर वही सेम चीज कर रहा था तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अगर इसके बदले आपके घर में कुरान की तिलावत की आवाज आती है तो आपका बच्चा सूरा पढ़ना चालू करेगा। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई कैन रिकॉल व्हेन आई वाज अ टीनेजर, हम ये एग्जांपल काफी बार देते हैं कि हमारे मम्मी जब जोर जोर से कुरान की तिलावत करते थे या नमाज पढ़ते थे, तो जो सूराज वो फ्रीक्वेंटली पढ़ा करते थे, वो जब हमने पढ़ना स्टार्ट किए
तो बिफोर आई न्यू इट वो सूरास हमको ऑलरेडी लर्न हो चुकी थी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, वो सूरास हमको इतनी इजीली लर्न हो गई, बड़े बड़े सूरास 40 आयतों की सूरा इतने इजीली लर्न हो गई, क्योंकि हम वो बार बार सुना करते थे। हमारे मम्मी, हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते थे, शायद हमारे खेल में बिजी होते होंगे, कुछ खा रहे होंगे, लेकिन हमारे मम्मी को वो सुन सुन के हमको अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी सूरा याद हो गई। और सिमिलर इंसिडेंट हमने हमारे जब फ्रेंड से डिस्कस किए तो उन्होंने बताया कि उनके जो फादर है वो रोज जोहर बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन पढ़ते हैं, और माशाल्लाह उनके 4 बच्चे हैं और चारों को ये 2 सूरह याद हो चुके, हिफ्ज हो चुके। उन्होंने कभी वो सूरह लेकर बैठे नहीं है याद करने के लिए, बट उनके वालिद जब पढ़ते हैं तो वो सुन सुनकर उनको याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है कि हम जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वो सीखेंगे। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि हमारा बच्चा गाने गा रहा है, तो आप जब कार में बाहर जा रहे हो तो आप गाने सुन रहे हो, तो वो बच्चा भी सुन रहा है, वो सीख रहा है उस टाइम पे। अगर आप कार में आते जाते वक्त या घर में आप अगर कुरान लगाओ तो इंशाल्लाह आपका बच्चा कुरान की तिलावत करना शुरू करेगा। तो जब ये बच्चे सुनते हैं, वो नहीं भी ध्यान देते, तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और ये स्पेशली बुरे हैबिट्स के लिए होता है, अच्छे हैबिट्स के लिए भी होता है, बट बिकॉज बैड थिंग्स, यू नो, इविल थिंग्स आर अट्रैक्टिव इन दिस वर्ल्ड, तो बच्चे इजीली वो ग्रास्प कर लेते हैं। बच्चे जो है वो नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। बेसिकली दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट द चेंजेस। आपके टीनेजर के बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके सोशल लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी में हम लोग ने काफी सारे चेंजेस आज देखे, जो डॉक्टर शहनाज ने हमको प्रेजेंट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किए कि प्यूबर्टी होती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ चालू हो रही है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत बार उनका मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, और उनकी जब फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, सब चीजों में चेंजेस हो रहे हैं। तो व्हाट दे थिंक, हाउ दे थिंक इज ऑल चेंजिंग। ये टाइम पे उनके रोल मॉडल्स को वो चूज कर रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सो वी हैव टू ट्राई टू बी आवर चाइल्ड्स आइडियल एंड रोल मॉडल। हमको कोशिश करना है कि हम वो बने जो हम हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं। सोशली भी बहुत चेंजेस होते हैं, वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंटर हो रहे हैं, उनके सोशल रोल्स चेंज हो रहे हैं, वो खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ओके, सो वी नीड टू गिव देम सम टाइम टू एडजस्ट। हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि आज लास्ट डे है, अभी तक ऐसे कर रहे थे, कल से सब बदल जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। ये जो प्रोसेसेस है, इसको टाइम लगता है। हम उनको ओवरबर्डन नहीं कर सकते, हमको उनको टाइम देना होगा। उनको प्रेशराइज करके नहीं चलेगा। वी कांट प्रेशराइज देम कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, ये आज से ये गलती नहीं होना चाहिए, एंड कल से यू शुड बी अ फ्रेश पर्सन, ये कोई गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे टीन्स, जो हमारे टीनेजर्स है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। इफ वी डोंट स्टैंड फॉर देम देन हु विल? अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? Next, very important thing that as parents we need to do is understand the generation gap. आपके बच्चे आपसे कम से कम 20 साल छोटे, उनका दौर अलग है और आपका दौर अलग था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोलते हैं, आपके बच्चों की तरबियत वैसे मत करो जैसे आपके पेरेंट्स ने आपकी की है, क्योंकि वो एक अलग दौर में पैदा हुए। तो हम बहुत बार सुनते हैं, हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, क्या हमने तो हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा रहे थे, तुम हमारे साथ ऐसे नहीं रहते हो। हम सब टर्म्स यूज करते हैं, बट अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोलते हैं कि वो अलग टाइम में पैदा हुए। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जैसे आप आपके फादर के साथ थे वैसे आपके बच्चे आपके मतलब उनके फादर के साथ रहे, बिकॉज वो एक अलग जनरेशन है। टाइम्स हैव चेंज्ड, बाहर का एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गया है। तो आप ये सेम प्रेशराइज उनको नहीं कर सकते कि आप हमारे साथ ऐसे ही ट्रीट करो जैसे हमने हमारे पेरेंट्स को ट्रीट किया था। तो ये जनरेशन गैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। अगर पेरेंट्स और बच्चे बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे उनके पर्सनल इश्यूज, तो वो ईमानदारी वाला जो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा।
और फिर टीनेजर्स को उनकी गलतियों, वो क्या करने लगेंगे, अपनी जो गलतियां हो रहे हैं, टीनेज में ज्यादातर बच्चों से गलतियां होते हैं, इनफैक्ट सबसे होते हैं बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो सब बच्चे जब गलती करते हैं तो वो पेरेंट्स के डर से वो अपनी गलतियों को छुपाने लग जाते हैं, उसके लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर पेरेंट्स एकदम ऑनेस्टली और क्लियरली अपने बच्चों से उनके एक्सपेक्टेशंस और गोल्स शेयर करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं क्या क्या एक्सेप्टेबल टर्म्स है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, आपको कुछ चीजें अच्छे नहीं लगेंगे बट आपको आपके बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपके बच्चों को कुछ चीजें अच्छे नहीं लगेंगे जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत दोनों साइड, इन एनी रिलेशनशिप यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों साइड्स को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको भी कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप उनसे एक बात करने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक कम्युनिकेशन का एक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि चलो हम ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आपके जो भी इश्यूज है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग एक सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना चिल्लाए उनको, बिकॉज उनको वो डर होता है कि हमारे पेरेंट्स हमको चिल्लाएंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा शेयर नहीं कर पाते। तो उनको वो डर नहीं होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमको चिल्लाएंगे या मारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी गलती करे तो आप उनको ना चिल्लाओ और ना मारो, बट छोटी छोटी बातों पे अगर आप चिल्लाने लगेंगे तो आप खुद के और आपके बच्चों में बहुत गैप डेवलप कर दोगे और फिर आपका बच्चा आपसे इतना क्लोज नहीं हो पाएगा। ओके, व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? बैड पेरेंट्स या तो ज्यादा ही अपने बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। कुछ पेरेंट्स इतना इंटरफेयर करेंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है ना ये भी माँ बाप को जानना है। तो दिस इज ओवर इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और अंडर इन्वॉल्वमेंट में बच्चा एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है और पेरेंट्स को खबर भी नहीं है, दे आर टोटली अनअवेयर। इतनी बुरी तरह का उसका मेंटल टॉर्चर चल रहा है उसके दिमाग में, बट पेरेंट्स आर अनअवेयर। तो बैड पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाते, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना घर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर एकदम ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, ये नहीं होगा तो ये पनिशमेंट, ऐसे नहीं करोगे तो वो पनिशमेंट। सो बैड पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर नहीं करते, उनका प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार करते होंगे बट एक्सप्रेस नहीं करते, उनका ध्यान नहीं देते। बैड पेरेंट्स अपने बच्चों को इंसल्ट करते हैं, दूसरों के सामने बुरा भला बोलते हैं, उनको बुरे नाम से पुकारते हैं, वो उनको कभी कभी गाली भी दे देते हैं गुस्से में। तो बैड पेरेंट्स का बच्चों पे क्या असर होता है, वो खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, खुद को यूजलेस और वर्थलेस समझने लगते हैं, आपकी नाफरमानी करने लगेंगे, रिबेल करना चालू कर देंगे, उनको इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। ठीक है, और बदतमीजी करना चालू कर देंगे वो। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से यही बता रही है कि बैड पेरेंट्स क्या होते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए, राइट? हम कब से यही बता रहे कि ये बैड पेरेंट है, ये बैड पेरेंट है, ऐसे बैड पेरेंट्स की ये क्वालिटीज है। लेकिन एग्जैक्टली ये सेम फीलिंग हमारे बच्चों को होती है, क्योंकि हम उनको सिर्फ मना करते हैं, हम उनको सिर्फ नेगेट करते हैं कि ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है और वो भी नहीं करना है। हम उनको ये नहीं बताते कि उनको क्या करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव देम ऑल्टरनेटिव्स कि आप ये भी कर सकते हो, आप इसके बदले ये कर लो, आपको उनको ऑप्शंस देना है। अगर आप उनको सिर्फ मना करोगे तो उनको पता नहीं होगा कि उनको क्या करना है, एंड देन दे विल डिसओबे। एनीवेज, तो हमको क्या करना है, हमको हमारे बच्चों से बात करना है, उनके फीलिंग्स शेयर करना है, उनके फीलिंग्स समझने की कोशिश करना है, उनको गाइड करना है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, आप ये गलत काम करोगे तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, अगर आप ये सही काम करोगे तो इसके ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा तो उसको आप हेल्प करो डिसीजंस लेने में। अगर वो गलती कर रहा है तो उसको चिल्लाने के बदले में आप उसको समझा सकते हैं कि वो क्यों गलत कर रहा है। ओके, तो उनको ये एहसास दिलाना है कि वो अगर गलती कर रहे हैं तो उनकी गलती गलत है, वो गलत नहीं है। ठीक है, उनको वो स्पेस देना है। आप ऐसे कोशिश करना है कि वो आपसे आकर बात कर सके फ्रीली अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके दिमाग में होता है कि हम अपने बच्चों के साथ एक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप रखें या हम उनको फ्रेंड जैसा ट्रीट करें। सो आंसर इज मॉडरेशन।
आपको दोनों भी रोल्स को मैनेज करना है, आपको पेरेंट भी बनना है और फ्रेंड भी बनना है, बट सिचुएशन के हिसाब से। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से सबसे पहले आप उनकी अच्छी परवरिश करो। दिस इज फर्स्ट फेज 1, नर्चर करना उनको। ओके, उसके बाद आप उनको एक अच्छा इस्लामिक कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करो। फेज 2, बिल्डिंग इस्लामिक कैरेक्टर। और फिर उनको दोस्त बना के दोस्त जैसा ट्रीट करना है। ओके, तो हमको एक फ्रेंड भी बनना है और एक पेरेंट भी बनना है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, तो टीनेजर्स एक ऐसे साइकोलॉजिकल इशू से स्ट्रगल करते हैं जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। वो ये चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एज में उनको ये चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रोल क्या है सोसाइटी में, उनकी क्या हैसियत है। वो बड़े हो चुके हैं या वो अभी तक छोटे हैं। तो मम्मी की अगर हेल्प करना है तो मम्मी क्या बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हो चुके हो। पर अगर हमको बाइक चलाना है तो हमारे डैड क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तुम तो बहुत छोटे हो अभी। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ये एज में बच्चे उनके मॉरल सेट करते हैं, वो सही और गलत की पहचान करने लगते हैं। तो अगर हम उनको नहीं बताएंगे क्या सही और क्या गलत है, तो उनके जो फ्रेंड्स है वो गलत चीजों को सही बताकर प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। ठीक है, और अगर हमारे बच्चा एक टीनेजर है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी हमारे बच्चे होना चाहिए। ओके, तो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट फ्रेंड्स। टीनेजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके फ्रेंड्स है। तो ये एज में फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, और जो पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो एडोलेसेंस या टीनेजर्स जो है उनके ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको उनके फ्रेंड्स के ग्रुप में रहने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। अदरवाइज उनके फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनके फ्रेंड सर्कल में नहीं लेते। तो अगर हमारे बच्चे के फ्रेंड्स जीन्स टी शर्ट पहनते हैं तो हमारी बच्ची शायद ही उनके साथ सलवार कमीज या बुर्का पहन के जा सकती है, बिकॉज शी विल फील लेफ्ट आउट। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो फ्रेंड्स है वो एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। तो जैसे जैसे आप उनसे दूर जाते जा रहे हो, उनके जो फ्रेंड्स है वो उनके और करीब होते जा रहे हैं, तो वहां पर एक अलग रिलेशनशिप बना रहे हैं। दे आर मेकिंग अ रिलेशन जहाँ पे वो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बना रहे, जो वो आपके साथ नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप पेरेंट्स बन रहे हैं आप उनके साथ स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, आप उनको हर चीज के लिए मना कर रहे हैं। तो वो उनको जो पसंद है वो चीजें वो कहीं और जाकर ढूंढते जो उनके फ्रेंड्स के पास मिलती है उनको। तो वो उनके ट्रस्ट करने लगते हैं, और पेरेंट्स से कहीं ज्यादा बच्चे अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट करने लगते हैं। और ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स हमारे बच्चों को नेगेटिवली बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर कोई बाकी फ्रेंड्स जैसे नहीं है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, सब उनपे हंसते हैं, और फिर वो ग्रुप में फिट नहीं हो पाते। फ्रेंड्स बुली करते हैं, जैसे आज हमने सेशन में देखे कि फ्रेंड्स बुली करते हैं और रैगिंग करते हैं। और ये सिचुएशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ना उनका फैमिली सपोर्ट होता है और ना उनके पास फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स फैमिली के अगेंस्ट हो जाती है और फैमिली जो है वो फ्रेंड्स के अगेंस्ट हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स पहले से ही अपने बच्चों को सिर्फ जो नेक फ्रेंड्स है, जो राइचियस फ्रेंड्स है, उनका एक्सपोजर दे और उन्हीं से सोशलाइज करने दे। तो you need to do this even if you have to change the locality in which you're staying. Very important, I repeat, अगर आपको आपका घर, आपका एरिया भी चेंज करना पड़े तो आपको ये आपके बच्चों के लिए करना है, because it is very important. ये एज में हम जितना हमारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे वो हमारे से उतना ही क्लोज आ जाएंगे। अगर हर गलती पे हम उनको डांटेंगे तो वो हमारे से दूर चले जाएंगे। हमको चाहिए कि हमारे बच्चों को, टीनेजर्स को भी प्यार करे, उनको किस करे, उनको आई लव यू बोले। तो ये हदीस में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ग्रैंडसन को किस कर रहे थे, तो एक सहाबा ने आकर बोले कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले, जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने ग्रैंडसन को कंधे पर बिठाकर अल्लाह को बोल रहे थे, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो तू भी इनसे मोहब्बत कर। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? अगर हम हमारे बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे।
ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो उनको रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनको भी उतनी ही जरूरत होती है रिस्पेक्ट की जितनी आपको होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, उनके कैपेबिलिटीज कुछ और है। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हो बट स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में नहीं अच्छा हो बट वो इस्लाम में ज्यादा कनेक्टेड हो अल्लाह से। तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। कंपैरिजन से क्या होता है कि बच्चे बहुत चिढ़ते हैं और फिर वो और ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। ओके, सो ऑल्सो एज पेरेंट्स हमने हमारे बॉयज और गर्ल्स को अलग ट्रीट नहीं करना है, उनको एक जैसा ट्रीट करना है, अनलेस वो चीजों में अल्लाह ताला ने या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिस्क्रिमिनेट किया है। तो किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर दूसरे को नहीं देना है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, लास्ट स्लाइड। अगर ये सब करने के बाद भी, आप बेस्ट पेरेंट्स बनने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आता है और सही रास्ते पे नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे पेरेंट्स हैं और हमारे तरबियत में कमी हो गई है। बिकॉज नूह अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट होने के बाद भी उनका खुद का बेटा इस्लाम पे नहीं था, उनकी और अल्लाह की दोनों की नाफरमानी किया उसने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम एक अच्छे पेरेंट नहीं थे। सिमिलरली याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक वेल में फेंक दिए थे और याकूब अलैहिस्सलाम को झूठी स्टोरी बोलकर उनको गुमराह किए थे। ये स्टोरी सबको पता होगी, राइट? तो अगर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नाफरमान निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि याकूब अलैहिस्सलाम एक अच्छी तरबियत नहीं कर सके, नाउजुबिल्लाह। एक और एग्जाम्पल है सूरह कहफ में, जब खिजर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के का कत्ल किए तो उसका रीजन था कि उसके पेरेंट्स नेक थे और नाफरमान, और उनका जो बेटा था वो नाफरमानी और कुफ्र करके उनको उनके ऊपर बोझ बन जाता था। तो ये सब एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है दैट एज पेरेंट्स वी हैव टू डू आवर बेस्ट। हमको हमारा बेस्ट करना है, हमको हमारी कोशिश करना है, बाकी हिदायत जो दे है वो अल्लाह ही देने वाला है, राइट? तो कुरान में बहुत सारे दुआएं हैं जो हम हमारी नेक औलाद के लिए कर सकते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे ये दुआओं के लिए तो इट विल बेनिफिट अस इंशाल्लाह। तो अच्छी तरबियत के साथ बहुत दुआ भी करना इंपॉर्टेंट है। मे अल्लाह मेक ऑल ऑफ अस गुड पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स के हमारे बच्चे हमारे साथ रहना एंजॉय करे, अगर दूर हो तो वो हमें याद करे और हमारे मर जाने के बाद हमारे लिए दुआ करे। या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे लिए जन्नत का दरवाजा बना दे, उनको नेक सौले और सीधे रास्ते पे चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डियर मदर्स फॉर लेंडिंग मी अ पेशेंट ईयर। माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे थ्रू आउट। हमारे दोनों स्पीकर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। हमारी टेक्निकल टीम, वॉलंटियर्स ऑलवेज डू अ वंडरफुल जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह। Jazakallah khair to All India Muslim Personal Law Board Women's Wing, Dr. Asma Zahra Sahiba, for hosting this wonderful session for our mothers. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।